تیموتھیوس کے نام پہلا خط 6 باب اور اس کی 30 آیت سے ہم دیکھیں گے. سنیے, تھوڑی سی لمبی تلاوت ہے, لیکن سنیے خدا کیا فرماتا ہے. پہلا تیموتھیوس 6 باب اور اس کی 30 آیت سے کلام میں لکھا ہے, اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو, یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے, وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا, بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے, جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں, دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے, کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. بس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو, کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں, لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں, جو آدمیوں کو تباہ اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے, خوشی رکھیے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں, اس لیے ہاللیلویا. خدا کی تعریف ہو کہ خدا بڑا مہربان ہے, وہ بھلا ہے اور روز ہمیں نئی بلیسنگز, نئی قوت اور نئے زور جوش میں رکھتا ہے, اور خاص طور پر ہمیں اپنے حضور لے آتا ہے. ہاللیلویا. سارے بولیں گے تو اچھا لگے گا. شروع سے ہی اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو جس قدر پاک روح کی معمولی ہے اپنے آپ کو بولنے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. آج کا مضمون بڑا ہی خاص, پریکٹیکل اور روز عمل پہ آنے والا ہے. اسی طرح آج اپنے ان میسیجز میں شامل کر لیجئے گا جو لائف چینجنگ ہے. کلام تو جو بھی خدا نازل کرتا ہے وہ لائف چینجنگ ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہر گھڑی ہماری زندگیوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں, ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے. کلام مقدس میں آج جو مضمون ہے وہ ہے کنایت. کیا جی بولے گے جی؟ کنایت. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. اس کو ہم بڑے ہی سادہ اور بڑے ہی ریفرنس کے ساتھ سیکھیں گے, کیونکہ کلام کے اندر جو آج کی سنہری آیت ہے وہ 6 آیت ہے. ہاں, دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. انسان کبھی اپنا نقصان نہیں سوچتا. کبھی کسی نے اپنا نقصان سوچا یا کوئی کام کرنے سے پہلے کہیں یا میں نقصان ہو جائے؟ کبھی سوچ میں بھی نہیں آتا. ہم کبھی ایسا کوئی پروگرام نہیں بنائیں گے جس میں ہمارا نقصان ہو.
ہم کبھی کسی ایسے بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جس سے منافع کی جگہ نقصان ہو. ہم کبھی بھی کسی ایسی بات میں شامل نہیں ہوں گے جس میں عزت کی بجائے بےعزتی ہو، کیونکہ بےعزتی بھی نقصان کا ایک پہلو ہے. کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے. آج میں خدا کے کلام میں سے آپ کو آپ کی برکتوں کو بڑھانے کا ایک فارمولا جو بائبل نے ہمیں دیا ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں. دو لفظ اس آیت کے اندر خاص ہیں. ان دونوں کو ہم دیکھتے جاتے ہیں. ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ. اس کا مطلب دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے، ایک کام ہے، ایک امر ہے جس کے ساتھ دوسرا مل جائے گا تو وہ نفع کا ذریعہ بن جائے گا. دینداری قناعت کے ساتھ. اس کی عام مثال ہے تو سادہ مثالوں سے میں سیکھتا ہوں. آئس کریم چاکلیٹ کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گی. ونیلا چاکلیٹ کے ساتھ اور ٹیسٹ دے گا. ایک سے بھلے دو. تو دینداری قناعت کے ساتھ. آئیے ذرا دینداری کے معنی اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے. دینداری کے جو اردو لغت کے مطابق معنی ہے 3 ہے. پہلا اس کا مطلب ہے پرہیزگاری. کیا جی مطلب؟ دوسرا مطلب ہے شریعت کی پابندی. کیا جی؟ شریعت کی پابندی. اور تیسرا مطلب ہے مذہب کی پابندی. کیا جی؟ مذہب کی پابندی. اب کلام دینداری پر زور دے رہا ہے. دینداری اچھی ہے اور اس کا پہلا مطلب ہے پرہیزگاری. اور جب ہم پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں تو پرہیزگاری روح کا پھل جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں سے ایک خوبصورت کوالٹی ہے. ذرا میرے ساتھ جلدی سے دیکھ لیجیے گا. گلتیوں کے نام خط. جلدی سے والے یا مائک ایک دیتے ہیں، اگر جلدی نکال لیں گی تو وہ بھی پڑھ لیں گے. گلتیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت دیکھیں. لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے جو پاک کلام ہمیں آج سکھاتا ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. روح کا پھل جو ہے یہ 9 کوالٹیز پر مشتمل ہے اور اس میں سے ایک کوالٹی کیا ہے؟ پرہیزگاری. اور پرہیزگاری کس کا مطلب ہے؟ دینداری کا مطلب ہے. اور آج کلام ہمیں کہہ رہے ہیں پرہیزگاری کرو. آج کلام ہمیں یہ تنبیہ کرتا ہے شریعت کی پابندی کرو. شریعت کیا ہے؟ اکثر ہمارے ذہن میں شریعت کا لفظ جب آتا ہے تو پرانا عہد نامہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. لیکن شریعت کہتے ہیں شرع کو. شریعت جو خدا کے حکم ہے، خدا کا کلام ہے. آپ اور میں دینداری اگر رکھتے ہیں تو پرہیزگار ہیں، اور اگر پرہیزگاری اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو شریعت پر یعنی کہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنتے ہیں. اگر آپ دیندار ہیں، اگر آپ دین کو، یہ اردو کا لفظ ہے، دین کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، آپ کے روزے بہت اچھے ہیں، آپ کی دعا بہت اچھی ہے، آپ کا چرچ آنا بہت اچھا ہے، آپ کا دائرکی دینا بڑا اچھا ہے. یہ ساری باتیں دینداری کے اندر آتی ہیں، خدا کے خوف کے اندر آتی ہیں. یہ ساری باتیں خدا کے حکموں کو ماننے کے اندر آتی ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے ایسی کوئی شریعت نہیں ہے جو ان باتوں کی مخالفت، کوئی ایسی نہیں ہے.
दुनिया में कोई ऐसा इल्हामी किताब नहीं है जो इन बातों की मुखालफत करती हो, परहेजगारी को डिनाई करती हो। हर मजहब के अंदर और दीन मसीहत के अंदर खास तौर पर दीनदारी को बड़ी अहमियत दी गई है, क्योंकि जब आप हुक्मों को मानते हैं, उसके फर्माबरदार हो जाते हैं, तो यकीनन दीनदारी आपके अंदर पैदा हो जाती है, परहेजगारी आपके अंदर पैदा हो जाती है। और जैसे आजकल लेट सीजन चल रहा है, रोजों के दिन चल रहे हैं, हर शख्स अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करता है, मैं चेंज हो जाऊं। और अच्छा है, रोजा हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाता है, रोजा हमें परहेजगारी की तरफ लेकर जाता है, रोजा हमें खुदा की कुर्बत में लेकर जाता है। और मैं उस दिन रोजा पर तालीम टीचिंग दे रहा था, बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में से मेरे दिल में खुदा ने डाली कि रोजा खुदा के इरादा को बदल सकता है। बोले हालेलुया। रोजा क्यों बदल देता है? क्योंकि इंसान अपने आप को बदल देता है। रोजा इसलिए इंसान को खुदा के करीब ले जाता है क्योंकि वो तब्दील हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका ख्याल बदल जाता है, उसका दिल बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती है, उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है, उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो जाता है। और जब खुदा का खौफ आपके अंदर आएगा तो आप भागे चले जाएंगे खुदा की हुजूरी में उससे मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। परहेजगारी, परहेज करना किस चीज से? इब्लीस के कामों से, दुनियादारी से, बुरी सोचों से, लालच से, हसद से, झगड़ों से, लड़ाइयों से परहेज करना। और जब आप परहेजगारी करेंगे, दीनदारी के जुमरे में आ जाएंगे। और ये हर ईमानदार के लिए जरूरी है, ये हर ईमानदार के लिए लाजिम है कि वो खुदा के साथ अपना वक्त गुजारे। लेकिन कई लोगों के ज़हन में सिर्फ चर्चा नहीं, दीनदारी हो जाता है। कई लोग खुदा की हुजूरी में हदिया डालकर ही दीनदार बनने की कोशिश करते और खुदा की पूरी कुर्बत को लेने की कोशिश करते हैं। सोच नहीं बदलते, ख्याल नहीं बदलते, हम सिर्फ आगे काम पूरा। लेकिन कलाम आज हमें यह बताता है कि हाँ, दीनदारी किनायत के साथ अगर दीनदारी करनी है तो कीजिए, लेकिन अगर वो किनायत के साथ करेंगे तो फिर नफा की चीज बन जाएगी। बोले हालेलुया। ये आपकी दीनदारी को चार चांद लगा देगी, किनायत। अब ये दूसरा लफ्ज किनायत है जो आज का सुनहरी मजमून है। आज हमने इस दीनदारी के साथ किनायत को सीख लेना है। अभी तक हमने दीनदारी के बारे में सीखा। दीनदारी क्या है जी? परहेजगारी, शरीयत पर पाबंदी, यानी कि खुदा के कलाम पर पाबंदी। आइए, कलाम कहता है इसके साथ किनायत को अपनी जिंदगी में जगह दे दीजिए। तो ये किनायत क्या है? आइए जरा मेरे साथ किनायत का मतलब देख ले लुगत के मुताबिक। जब मैं लुगत कहता हूं तो लुगत का मतलब कहते हैं ना लुगवी मानी, यानी कि उर्दू डिक्शनरी को उर्दू में लुगत कहते हैं और लुगात कहते हैं। ठीक है, तो लुगात से लुगवी मानी होते हैं। किनायत के लुगवी मानी है, इसके भी दो मानी है, अपने पास जरा लिख लीजिएगा। पहला मानी है थोड़ी चीज पर खुश होना। क्या जी? बोलो बोलो, क्या क्या जी? थोड़ी चीज पर, थोड़ी चीज पर, ओके। और दूसरा मतलब है जो मिल जाए उस पर राजी रहना। यानी क्या जी? जो मिल जाए उस पर राजी होना। ये किनायत है। तो मतलब बड़े वाज़ेह, बड़े क्लियर, थोड़ी चीज पर खुश होना। ये इंसानी फितरत के खिलाफ बात है। ये इंसानी फितरत के क्या जी? बजियो जरा बोलो क्या जी? क्यों? क्योंकि थोड़ी शायद सानू पसंद नहीं है, हम थोड़ी चीज पर राजी नहीं होते। हम थोड़ी चीज, सानू तो देखते चौल थोड़ा नहीं पसंद है ना। बाहर आते ना दरवाजा नॉक कर, जी प्लेट लाओ, असि देसी की लैके जानी है।
थोड़ी नहीं पसंद होगी, है ना, थोड़ी पसंद नहीं है। तो कलाम कहता है कनायत दीनदारी, आप दीनदार हैं, आप रोजा रखते हैं, आप दुआ करते हैं, आप खुदा के कदमों में रहते हैं, आप खुदा की हुजूरी में रहते हैं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके साथ कनायत को अपना लीजिए। कनायत आपकी जिंदगी में आ जाए, आप इस दीनदारी का डबल मजा हासिल करेंगे, इस दीनदारी की डबल बरकत हासिल करेंगे। इस दीनदारी को आपके अंदर प्रैक्टिकली लोग देखेंगे और बरकत पाएंगे, है ना। थोड़ी चीज पर क्या होना, खुश होना कनायत है, और ये खिलाफ फितरत है। इंसान की फितरत थोड़े में खुश नहीं होते। फिर दूसरे मतलब की तरफ आ जाइए कि जो कुछ मिल रहा है उस पर राजी, ये भी बड़ी गलत, ये भी बड़ी गलत इंसान के अंदर सोच है कि उन्हें पे नहीं राजी जो मिल गए, है ना, क्योंकि कनायत नहीं है, क्योंकि शुक्र नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर उस बात में खुशी नहीं है जो हमारे पास है। तो कलाम मुकद्दस का एक हवाला आपको ज़बूर 103 में से सुनाए देता हूं। कलाम में लिखा है, वो तुझे, मैं आधी बोलूंगा आधी आप बोलेंगे, और बुलंद आवाज से, नीचे ऊपर से मुझे आवाज आनी चाहिए, वो तुझे उम्र भर, हाँ जी यही है, लेकिन दोबारा बोलेंगे, और अब जो नहीं बोले वो भी बोलेंगे, वो तुझे उम्र भर, हालेलुया, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। इसका मतलब है अच्छी चीजें कहां से आई, अच्छी चीजें किसने दी, किसने दी, खुदा ने दी। और जो कुछ वो दे देता है, जो कुछ आपके पास है, उसका शुक्रिया अदा करें। उसे कहे खुदा तेरा शुक्र है, मैं जिस हाल में हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, और दिल से कहे, कई उत्तर तो कह देते इतनी बात शुक्र है खुदा का, अंदरों दिल कर रहे होता है कि मैं इस धरती पार आसमाना निकल जावा, मेरे को तो कख नहीं, ऊपर ऊपर से झूठा शुक्र, झूठी कनायत का दावा। लेकिन जो कनायत असल में होती है वो आपको फायदा पहुंचा रही होती है, आपकी दीनदारी के कामों को भी वो ब्लेस कर रही होती है। खुदा के हुजूर मैं आपको ये बात खास तौर पर बता रहा हूं, आप जैसे हैं शुक्र किया है, कनायत किया करें, राजी रहे, ओके प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जैसा हूं, हालेलुया। कई दफा हम एक दूसरे जैसे बनने की कोशिश में ना असी वो बन पाते हैं, ना जो जो आप होंगे पहचान तो भी बात है ना, है नहीं, कोई बात नहीं, अब जैसे भी है, आपका नाक, आपकी आंखें, आपका चेहरा, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने बनाया ना, किसने बनाया, किसने बनाया, कई गिला कर मैनू खुदा ने थे पाकिस्तान च मन्ने घर पैदा करना से, मैनू किते बाहर जोधों के घर पैदा करना, किते इंग्लैंड पैदा करना, है ना। मैं हैरान होता हूँ, कई दफा मैं आपको अपनी नौजवानी नहीं बचपन की बात बताता हूँ, है किसी माड़े जे बंदे नूं वेखना ना गड्डी चलाते या मोटरसाइकिल चलाते, आखना लै खुदा नूं पता भी नहीं लगता यार, इन्नू दे दे तो मैनू नहीं, है ना। ये हमारी सोच होती है, क्यों, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है उस पे हम राजी नहीं है, राजी दूसरों की मेहनतें देखकर है, राजी दूसरों की सरफराजी देखकर नहीं यार, जो तेरा है उस पर खुश रह, फिर तेरे रोजों का तुझे मजा आएगा, फिर तेरी दुआएं तेरे काम आएंगी, फिर तेरा खुदा के कदमों में आना तुझे बरकत देगा, फिर तुझे खुदा के साथ उसके कलाम पर अमल करना ज्यादा बरकत देगा, अगर तू जैसा है, जिस हाल में है, उस हाल में राजी है। कई कहते हैं साढ़े को फड्डे खत्म नहीं होते, कहते हैं ना, कहते भाई साहब गिरजे भी बड़ा आते हैं, लड़ाई नहीं मुकती पई,
आज आपको बताऊं क्यों नहीं मुक्ति? मैं आपको कलाम में से प्रूव करता हूं। कलाम के अंदर लिखा है खुदा जिनसे राजी है उनकी जिंदगियों में क्या दिया? हाँ जी, सुना। मत्ती की इंजील के अंदर लिखा हुआ है जिनसे खुदा राजी है उनकी जिंदगी में सुना। तो खुदा राजी कब नहीं होता? आपकी दुआ भी अच्छी, आपका रोजा भी अच्छा, आपका चर्च आना भी अच्छा, और आपकी डायरेक्टी भी ठीक, फिर खुदा खुश क्यों नहीं है? खुदा राजी क्यों नहीं है? खुदा इसलिए राजी नहीं है कि ये काम तो तेरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर राजी, जो कुछ तेरे पास है उससे तू राजी नहीं है। तुझे दूसरों की चीजें अच्छी लग रही हैं। इसका मतलब है तू जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तुझे खुदा ने बता दिया है, उस पर राजी नहीं है। तू राजी है तुझे पे। तेरे रोजे इसीलिए काम नहीं दिखा रहे, तेरी दुआएं इसीलिए काम नहीं दिखा रहे क्योंकि तू राजी नहीं है। आइए सोच को बदले, आइए ख्याल को बदले, आइए दिल को बदले। आप जैसे हैं, जिस हाल में है, बेहतरीन है क्योंकि खुदा के हैं। बोले हालेलुया, क्योंकि खुदा के हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं अक्सर ये इस बात के खिलाफ बोलता हूं, हम अपने घरों के बजट कैसे डिस्टर्ब करते हैं गैर जरूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। गैर जरूरी, जरूरी की नहीं बात कर रहा, कई चीजें जरूरी है। अब गर्मी आ रही है, फ्रिज दे रहा है वो की है जरूरी है भाई। आपके पास इकट्ठे 40,000 रुपए नहीं है, आप थोड़े से पैसे एडवांस देते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े करके आप दुकान वाले को वो किस्तों पे दे देते हैं। ओके, ये जरूरी चीज है ना, ले ले, नो प्रॉब्लम। और ये कार है ना फ्रिज ऑलरेडी है, तो सभी चीजें लिए वड्डी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫੁੱਟ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਸਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰਿਜ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਆਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਓ ਆ ਜਾਓ, आओ जनाब ले जाओ, साडे को पूरी दुकान ले जाओ, सानू कोई इतराज नहीं, ले जाओ। तो भाई तेरे रोजे, तेरी दुआएं इस तरह से नहीं नाम मिलाएंगी कि तेरी गैर जरूरी चीजों से तेरा घर भर गया। किस्तों वाला हर महीने आता है, हाँ जी बाजी दे, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, परसों आ जाओ, परसों आ जाओ, महीना लग जाता है, फिर आ जाता है। तो क्या ये तेरी बरकत है? हेलो, क्या ख्याल है? हकीकत की बातें कर लो, क्या ये तेरी बरकत है? नहीं भाई, ये तेरी बरकत नहीं है। क्या है यार, तेरे पास छोटी चीज है उसमें गुजारा कर ले, तेरे पास थोड़ी चीज है उसमें गुजारा कर ले, क्योंकि खुदा ने तुझे अभी ये छोटी ही दी है, वो खुद हालात बना देगा बड़ी के लिए। बोले हालेलुया, क्योंकि उसे तुझसे प्यार है। बोले हालेलुया, और दुनिया की सारी नेमतें तेरे लिए। बोले हालेलुया, लेकिन पहले तू थोड़ी में तो कमाई तो कर ले, पहले जो तेरे पास है उसमें तो राजी हो जा, है ना? हेलो, क्यों भाइयों, क्यों भाइयों, जो है उसमें तो राजी हो जा। और मैं कलाम तो रहा था, मैं कहा सानू होर दी इतनी आदत पै गई है कि कई किते कब्रिस्तान च मुर्दे को थोड़ा टाइम मिल जाए ना, है मुर्दे को थोड़ा टाइम उठ के वेखे एडी की कब्र थोड़ी जी तो होता इतनी आदत सानू पै गई। होर आगे हो नहीं भाई, और जो तेरे पास है उस पर राजी रह, देने वाली जात तुझे देती जाएगी और बाकी तू पहुंच जाएगा जहां तू पहुंचना चाहता है।
پہنچ جائے گا، لیکن دینے والا تجھے دے تو پھر ہے نا، یہ کس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور پھر لکھتے پھرتے ہیں. قناعت کیجیے، تھوڑی چیز پر قناعت کیجیے. شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کیوں بچ گئے؟ کتنا مزہ آتا ہے شاپنگ کرنے کا، شاپنگ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. کئی دفعہ ٹائم ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، پتہ کرے چلو اونجی ہو گئی ہے نا، ویسے ہی ونڈو شاپنگ کر رہا ہے. چلو پرائز ہی دیکھ کے آتے ہیں، کیا ہے کیسا ہے نا. بھائی تیرے پاس جو ہے تیرے پرانے سویٹر ٹھنڈیاں ٹکی جان دیا، پرانے کپڑے رلنڈے نے، تین ہور دی پئی ہوئی ہے کہ بھائی ہوتا جتنا ہے آمین کرو، دینا لی ذات کرے گی. ہاللویا ہاللویا. آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں خدا کی تعریف. امثال 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھیں. امثال 15واں باب، یہ بڑا خاص حوالہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں. 15واں باب 16ویں آیت کے اندر کلام میں لکھا ہے، تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے نا. تھوڑا، ہلو کیا لکھا ہے؟ تھوڑا جو خدا کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے نا. یہ گنج کیا چیز ہے؟ گنج کیا چیز ہے؟ بھائی جزاک اللہ، خبردار کسی نے ویکھیا بھائی 4 سال پہلے کسی نے ویکھیا. گنج کیا ہوتا ہے؟ گنج کہتے ہیں بڑا خزانہ. کیا جی؟ کیا جی؟ بڑا خزانہ. گنج کہتے ہیں بڑا خزانہ. اور کلام کہتا ہے تھوڑا خداوند کے خوف کے ساتھ بہتر ہے اس بڑے خزانے سے جو پریشانی کے ساتھ ہے. تو پریشانی کب آتی ہے؟ ہلو، پریشانی کب آتی ہے؟ جب ہم خدا کے خوف کی بجائے طرح طرح کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ہے نا؟ تب پریشانی آتی ہے. پریشانی آ گئی، پٹھان نہیں سورج جی، پٹھان باہر آیا. ہلو، کپڑے والا، سال دے دھار والا، وہ جڑا شاواں دے کے جانا کہتا سال بعد آ کے لے لاں، ہے نا؟ باہر آتا ہے. ہم پتہ سانو کہ باہر کون ہے؟ کون ہے؟ پٹھان ہے. ایک دوسرے نے تو جا، میں نہیں جانا. تو کون؟ وہ بھی ایڈا ٹھیک ہوتا ہے، باہر بہ جانا کہ گلا میں بیٹھا وا، میں لے کے ہی جانا ہے نا. سال بعد وہ آتا ہے، انہیں کہنا کرتا ہے. تو بھائی تیرے پاس اگر تھوڑا ہے تو اسی میں مینج کر لے. اس لالچ میں کہ سال بعد دینا، تو سال بعد کتنے دینا؟ یہی تنخواہ دینا، یہی سورس آف انکم ہے نا. یہی ہے جہاں سے آپ نے جمع کرنا ہے. تو پھر سال کا ٹائم کر لیں گے، ہے نا؟ کر لیں گے، اور کر لیں گے کرتے 12 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ جیسے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں بھائی 4 دفعہ کر کے دے دو بڑے پروگرام کے لیے، وہ کر لیں گے بادشاہ. چلو 2 باری کر کے دے دو، کر لیں گے. تو میں کہنا ہوں قسط والا سسٹم ختم ہو گیا. تو قسط والا سسٹم ختم ہو گیا تو گرجے نہیں جانا ہے. پھر اینڈ دن میں بہت خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اینڈ میں ہم دیتے ہیں اور خوشی کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن کیوں ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ جب آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے آپ کو یہ آپشنز دی ہوئی ہیں
अवेल कीजिए। अब पठाना चाहिए थे गाड़ी चाहिए ना, क्या काले पठान के चक्कर में क्यों नहीं होते? Come on, थोड़े थे थोड़े थे थोड़े थे थोड़े थे थोड़े बहुत बात एक बार हाथ सुनो कुछ ही हाथ सुनो हाथ लो यार कोई बात पहली गल झूठ बोलने दे क्योंकि काले दुकान होते नहीं है कबर आप और मैं आज कलाम सीख रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है उस पर क्या रहो, राजी रहो, उसी पर राजी रहो, क्योंकि कलाम कहता है बहुत सारा मुसीबतों परेशानियों के साथ जो है वो बेहतर नहीं है अगर तेरे पास थोड़ा है और खुदा के खौफ के साथ है, ये अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। अगर आपने किसी, अभी बहन ने बड़ी अच्छी गवाही दी, हमारी कल शादी थी, शादी सोच से ज्यादा अच्छी हो गई तो कर्जा भी नहीं चढ़िया। हालेलुया। ये बरकत, ये ब्लेसिंग, एक ही ब्लेसिंग, लोकी आए कट्टा भी खा गए, बड्डा भी खा गए, निक्का भी खा गए, लाला लाला करके ते ओ अपने घरां नूं ते तुसीं पिछे हुण परेशान कि हुण जरा 4 लाख चढ़ गया है, इहदा की करांगे। तो भाई मैं आसान हल देता हूं, मसले का बड़ा आसान हल है। इसी कलाम के अहम मुताबिक जितनी चादर है उतने पैर, यस, सुखी रहेंगे। अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ावा ना दे कि आपको गलत काम करना पड़े। अपनी ख्वाहिशात को इतना मत बढ़ाए कि आपको किसी का पर जबर करना पड़े, किसी का हक मारना पड़े, इतना मत बढ़ाए। आपकी छोटी ख्वाहिशात आपके अंदर पैशन पैदा करती है और वो पैशन आपको मेहनती बनाता है और आपकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और आप उन नेमतों को ले लेते हैं। और वो कौन देता है? आपकी मेहनत का अजर खुदा देता है और वो आपको देगा। कनायत में रहे, जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहे। जल्दी से एक और वाला देखेंगे, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम लिखा है, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है। गौर से सुनिए, आज आप भी सीख रहे हैं। पौलुस रसूल ने उस वक्त कहा मैंने सीखा है, आप भी आज सीख कर जाएंगे। और मैं ईमान रखता हूं जो खानदान इकट्ठे आ जाए हैं, मियां बीवी इकट्ठे आए हैं, वो एक नई बात सीख कर जा रहे हैं। क्या सीखा है? कि जिस हाल में हूं उसी पर राजी रहूं। हालेलुया। पौलुस रसूल ने क्या सीखा? कि जिस हाल में हूं क्या रहूं? राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हालेलुया। हर एक बार और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। हालेलुया हालेलुया। तो बोले हालेलुया। अजीज भाई, अजीज बहन, पौल ने सीखा, आज मैंने और आपने सीखा। कनायत कीजिए, खुदा का शुक्र कीजिए। जिस हाल में हूं राजी रहूं, पहली बात, क्योंकि मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हालेलुया। मैं वक्त पड़ने पर झुकना भी जानता हूं। अगर आंधी तूफान आ गई है, अगर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, तो अगर मेरे झुकने से वो गुजर जाएगा तो झुक जाइए, झुक जाइए, नो प्रॉब्लम। और झुकेगा कौन? जो झुकना जानता है? जो झुकना जानता वही झुकेगा। तो जिसने झुकना सीखे नहीं, वो क्या करेगा? वो टूट जाएगा, क्योंकि आंधी तूफान जो है वो लिहाज नहीं करते।
मैं हमेशा छोटे पौधों की मिसाल देता हूं। ये जब आंधी तूफान आते हैं, कभी अमरूद का पौधा टूटा देखा, कभी अनार का पौधा टूटा देखा? वजह जिधर भी बाहर उधर को झुक जाते हैं, जिधर हवा चलती है उधर को झुक जाते हैं, और क्या होता है? टूटने से बच जाते हैं। तो नेरी चलन से टोड़ते केड़े ने? है जी सफेदे ओ उत्ते करके 5-7 पत्ते होंगे ने, बाकी यहाँ आकड़िया होता होता। नेरी आंदी है, कहना मैं तेनू नहीं छड्डना, ओ तेरी कहती तेनू मैं नहीं छड्डना ठहर। फिर हुंदा की है, नेरी खत्म हुंदी है, सिर किधर पे होंदा तो धड़ किधर पे होता है, यानी कि तना कहीं पड़ा होता है, वो ऊपर से पत्ते कहीं पहुंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान के साथ, हालात के साथ उसने झुकना नहीं सीखा, टूट गया। ईमानदार भी ऐसे ही है। यीशु मसीह हमें सिखाता है, पौल हमें ये बात सिखा रहा है, कलाम हमें आज ये सिखा रहा है कि अगर हमें पस्त होना पड़े तब भी खुदा की तारीफ कीजिए, और अगर आपको खुदा बढ़ा रहा है तब भी खुदा की तारीफ कीजिए। आप हर हाल में खुदा के साथ राजी रहिए, आप खुदा के हुजूर बरकत पाएंगे हर हाल में। बकरा खाते थे, हालेलुया। तो जे थोड़ा जा किते माड़ा वेला आ गया तो दाल भी खा लो, दाल भी खा लो, नो प्रॉब्लम। क्या है? क्योंकि आप बकरा खाते खाते दाल पे आएंगे, याद रखिए आपको दाल से दोबारा बकरे पर ले जाने की हमारे यीशु में कुदरत है। हालेलुया। वो वापस ले जाएगा आपको, उसी मियार में वापस ले जाएगा, लेकिन कब? जब आप दाल में भी उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जब आप बस्ती में भी शुक्रगुजारी करेंगे। बिजनेस कम चल रहा है तब भी उतनी ही दुआ कीजिए और शुक्रगुजारी कीजिए। बीमारी आ गई है, बच्चे नाफरमान है, तब भी उतनी शुक्रगुजारी कीजिए, दुआ कीजिए। आपकी ये फरमाबरदारी, आपकी ये कनायत पसंदी आपको दोबारा आपके वापस मकाम पर ले जाएगी। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं कलाम में लिखा है, मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। इसका मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। गलेल कभी देखी किसने? कितने लोगों ने गलेल देखी? चलाना नहीं, सिर्फ कुछ ने। गलेल जब ऐसे पकड़ते हैं ना, किटी किटी कहते हैं, किटी कहते हैं, जो भी कहते हैं, उनमें जो बटा रख के बांटा रख के ना, ते जो एवं खिंची जाए तो क्या लगता है ये क्या जा रहा है, किधर को जा रहा है? पीछे को जा रहा है। लेकिन जब उसको छोड़ते हैं वही कमाल दिखाता है और कई कोस दूर भी जाने की कुदरत रखता है। आप भी ईमानदार ऐसे ही है। लगता ऐसे है कि हुण कारोबार नहीं चलना, लगता है में कि हुण बीमारी ने जान नहीं छड्डनी, लगता है कि हुण खानदान जुड़ नहीं सकता, तलाका होके रहणगियां, लगता ऐसे है। इब्लीस कानों में आकर कहता यही है कि अब तू बर्बाद हो जाएगा, अब तेरी बहाली नहीं है। लेकिन जो यीशु में पस्त हाली में भी काम करता है, उसका ताबेदार रहता है, वो दोबारा से बहाल होके ज्यादा बड़ा खानदान बन जाता है, कारोबार नया बन जाता है, बरकत नई आ जाती है, क्योंकि उसने पस्त हाली में भी अपने खुदा का शुक्रिया अदा किया है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। मैं आज आपको एक फॉर्मूला देने लगा यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने जो बाइबल मुकद्दस में हमें सिखाया, जो अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी करता है ना, वो बड़ी का हकदार होता है। जो आज छोटी चीजों को संभालता है वो कल बड़ी को संभालता है। जो आज छोटी खिदमत पर कायम है, जब भी कोई नया लड़का बेटा बेटी आती है काम करने के लिए, हम उसे कोशिश करते हैं छोटे काम से शुरू करें ताकि छोटी जिम्मेदारी को पूरी करें। कुछ बच्चे आप देखते हैं बाहर जूतियां सीधी कर रहे होते हैं, कुछ सफाई का काम करते हैं, हमारी बहनें कई दफा आकर चर्च को सारा सजाती है, खूबसूरत बनाती है, नए पुराने मिलके काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो नए होते हैं वो चेक हो जाते हैं कि आया ये अपनी छोटी जिम्मेदारी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, और जो छोटी जिम्मेदारी को पूरी करता है उसे बड़ी का
है ना, जिम्मेदार बना दिया जाता है। लो भी तो यार छोटा काम करते हो, बड़ा भी साथ में करो, ये बड़ा करते हो और बड़ा करो। तो जेना छोटी ते कामयाब हो गए, छोटी खिदमत ही दुरुस्त तरीके से ना करे, छोटी जिम्मेदारी को ही कबूल ना करे, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਦੀ ਦਾਗ और ना 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 ये तू रह दो, ये भाई करदा ही नहीं है, ਇਹਨੇ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆਖੀਏ। सो आपका खुदा आपको बढ़ाने, आपको ज्यादा देने और आपको बरकत से भरने की कुदरत रखता है। आइए पैदाइश में चलते हैं जल्दी जल्दी, शाबाश। जो दौलतमंद होना चाहते हैं जरा गौर से बात सुन लीजिएगा, ये हवाला आपके लिए है। पैदाइश 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। पैदाइश 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत, ये जो दौलतमंद होना चाहते हैं उनके लिए हवाला है। लिखा है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया। हाँ जी, अब्राहम जब लूत को छुड़ाकर लेकर आया, इन शॉर्ट में बात करूं, लूत को छुड़ाकर लेकर, लूत बादशाहों के जत्थे में पकड़ा गया जब सदोम और अमोरा पर हमला हुआ, लूत उसके बच्चे सारे चले गए, माल चला गया। अब्राहम गया अपने साथियों के साथ, उसने सबको छुड़ा लाया, बादशाहों को हराया, जब वो वापस आया दो लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, एक मलकीसेदेक सालम का बादशाह और दूसरा सदूम का बादशाह जो था, बल्कि मैं इसको कंफर्म कर दूं। और जब वो 17वीं आयत है, और जब वो किदर ला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तेमाल को सुई की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मलकीसेदेक सालम का बादशाह रोटी और मैल लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। ये दो बंदे आए, खुदा का काहिन जो था वो लेकर आया रोटी और मैल लेकर आया। लेकिन जो सदूम का बादशाह था उसने देखा कि ये लोग भी ले आया, ये माल भी ले आया, अब्राहम को मैं खुश करता हूं। उसने कहा अब्राहम माल तेरा ते बंदे मनु देते, है ना। तो अब्राहम का ये वाक्या, ये बात मेरे दिल में उस वक्त से, जब से मैंने होश संभाला और मैंने पहली दफा कलाम मुकद्दस पढ़ते हुए इस वाला को पढ़ा, उसने कहा जो जवानों ने खा लिया वो खा लिया, मैं इस माल में से जो मैं लूट कर लाया हूं, इस माल में से ना कोई धागा लूंगा, यानी कि छोटी से छोटी चीज, और ना कोई तस्मा लूंगा। गौर से बात सुनिए, जब अपने बाप के घर से चला था अच्छी हालत में था, लेकिन जब रास्ते में वो कमजोरी की हालत में था, खुदा के साथ वफादार रहा, खुदा के वादे को मानता रहा, और आज मौका था वीर होने का बड़े आराम के साथ। शॉर्टकट में बादशाह कह रहा था बंदे मेरे ते माल तेरा, कह सकता था मैं लूट के लाया हूं, मैं इस पर काबिज हो जाता हूं, लेकिन उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा ना मैं इस माल में से कोई धागा लूंगा और ना कोई तस्मा लूंगा। वजह क्या है? वजह यह है, उसने कहा ताकि जब अब्राहम अमीर हो, अब्राहम जब खुदा के हुजूर से बरकत पाए, जब अब्राहम बादशाहों को मार कर आया है तो उसकी इज्जत बढ़े, दौलत के अंबार लग जाए, तो कहीं ये बादशाह सदूम का बादशाह ये ललकार ना उठा दे कि देखो मैंने अब्राहम को अमीर बना दिया, बंदे नहीं अमीर बना, क्योंकि बंदे जो तारी मदद करेंगे वो जिताएंगे, लेकिन बादशाह का बादशाह जो देगा वो आपको जिताएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। अब्राहम ने कहा, और अब्राहम को पता था कि मेरा खुदा मुझे अमीर करेगा। आपको भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपका खुदा आपको अमीर
کرے گا لیکن بندے نہیں، خدا کرے. آپ کا گھر نعمتوں سے بھرے گا لیکن قسطوں کی چیزوں سے نہیں. آپ کی اپنی بلیسنگز ہوں گی. میں نے پہلے کہا قسطوں پر چیز دینا برا نہیں ہے، لیکن ضرورت کی جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایویں چاہنا نہیں. نواں موبائل آیا ₹1,00,000 کا تو میں ₹1.5 लाख کا قسطاں تے چک لیا. انہوں گھر لے کے آنا، وہ قیمت ادھی ہو جانی. 6 مہینے بعد مجھے تیرا دل اکتا جانا تو قسطاں ہے نہیں ہے. تو بھائی تیرا چھوٹے موبائل سے اگر گزارا ہو رہا تو کر لے، کوئی بات نہیں. شو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جدھر تینوں خدا وڈی گڈی دے گا نال وڈا موبائل بھی دے دے گا. بولو ہاللویا ہاللویا. وہ نال وڈا موبائل بھی دے دے گا. موبائل تیرا ₹1,00,000 والا گڈی تیری 40,000 والی سوٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا بھائی. میں نے نئی گاڑی لی، میری بیٹی ابھی بیٹھی نہیں یہاں پہ. میں نے کہا پادری صاحب میں بڑا موبائل لینا ہی نہیں تھا. میں نکل بڑے موبائل 2-4 ہزار. میں نے کہا پادری صاحب تاری مہربانی ہے، ہم گڈی لے لیجیے موبائل بھی لے لو. میں کہا پتر لے لیتا. خدا نے گاڑی کے ساتھ موبائل بھی دے دیا ہمیں، نو پرابلم. اس پر توکل کریں، جو ہے اس میں خوش رہیں. وقت پر خدا آپ کو سرفراز کرے گا. اور دینداری کریں، روزے رکھیں، دعا مانگے، خدا کے قدموں میں آئے، جھکے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس میں خوش بھی رہے. ایویں سر مار کے اپنا بیڑا گرک نہ کرو. صحت بھی خراب، بجٹ بھی خراب، اور آپ کے چہرے کا نور بھی اڑ جاتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جب ہم ایکسٹرا فکروں میں پڑ جاتے ہیں نا کہ وہ دیکھو بڑا کچھ میرے کو نہیں، تو جڑا ہوتا ہے ساڈے کو رنگ روپ وہ بھی. آئیے آج خدا ان کے حضور اس بات کو اپنے دل میں رکھیں کہ قناعت آپ کی دینداری کو 4 چاند لگا دے گی، اور خدا آپ کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے ڈھیر و برکات عطا کرے گا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنی نعمتوں کو کلیم کریں، جو کچھ ہے اس پر راضی رہ کر خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں. آئیے خدا ان کے حضور اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں.